کسی بھی سچویشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کسی پرابلم کو فیس کرتے ہیں، اس پرابلم کی آبجیکٹیو انالیسس کرنے کی جو اٹیمپٹ ہے، what do we actually mean by objective analysis؟ مطلب فیکٹس اینڈ فگرز، آپ کے سامنے گراؤنڈز ہو، آپ کے سامنے ایویڈنسز ہو، ان ایویڈنسز کا استعمال کر کے اس پرابلم سے ریلیٹڈ ساؤنڈ سولوشنز تک پہنچنے کی کوشش کا نام یہ آپ کا لاجیکل تھنکنگ کہلاتا ہے، یہ آپ کا کرٹیکل تھنکنگ کہلاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے، اگر ہم اس کی ایکچول کمپیریٹیو انالیسس کریں گے نا، اکثر ہم اپنی زندگی میں مسائل کو سلجھانے کے حوالے سے ڈاگمیٹک اور سپرسٹیشیس تھنکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ڈاگمیٹک اور سپرسٹیشیس جو تھنکنگ ہے، توہمات کی بنیاد پہ مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرنا۔ تو کرٹیکل تھنکنگ یا لاجیکل تھنکنگ اور ایک ڈاگمیٹک یا سپرسٹیشیس تھنکنگ میں مین فرق یہی ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس گراؤنڈز نہیں ہوتے، آپ کے پاس ریزنز نہیں ہوتے۔ ریزنز اینڈ گراؤنڈ سے مراد فیکٹس اینڈ فگرز۔ آپ مشاہدے کا استعمال کر کے کسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ فارمل سائنسز کی جو فارمولاز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا عقل، تو عقل اور حس کی بنیاد پہ مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرنے کا نام کرٹیکل تھنکنگ کہلاتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس کا جو مین اپروچ ہے نا، وہ ہے آبجیکٹیویٹی، ٹھیک ہے، آبجیکٹیویٹی ورسز سبجیکٹیویٹی۔ جب ہم سپرسٹیشیس اور ڈاگمیٹک تھنکنگ کی طرف چلے جاتے تو وہاں پہ آپ سبجیکٹیویٹی، اور وہ بھی اس انداز میں کہ آپ ایک خاص کلچر کا حصہ ہے، آپ ایک خاص تھنکنگ کو فالو کرے، اور وہ تھنکنگ ایکچولی گراؤنڈز پہ بیس نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ صرف سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے۔ اس کو ہم لاجک کی دنیا میں کہتے ہیں فالس کاس فیلیسی۔ آپ کی ایک فیلیشیس اٹیمپٹ جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اس واقعے کے وقوع کے حوالے سے آپ اس کے لیے کوئی دوسرا واقعہ رسپانسیبل جانتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے بیچ لاجیکل کنیکشنز ہے، اے نے بی کو کاس کیا، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اے اور بی کے بیچ لاجیکل کنیکشن موجود ہے۔ سپرسٹیشیس تھنکنگ یا ڈاگمیٹک تھنکنگ میں حقیقت میں وہ لاجیکل کنیکشن ہوتی نہیں ہے۔ جس طرح ہم عام زندگی میں کہتے ہیں نا، کالی بلی نے رستہ کاٹا خدا خیر کرے، کوا آ کر دیوار پہ بیٹھا مہمان آنے والے ہیں، میری دائیں آنکھ پڑپڑا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور بائیں آنکھ پڑپڑا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح کی ہم نے بہت ساری تھنکنگ کو اپنے روٹین بیہیویئر کا حصہ بنایا ہوتا ہے۔ اس قسم کی تھنکنگ کو اگر ہم لاجیکلی ایویلویٹ کریں گے نا، تو یو آر ایکسیپٹنگ سم تھنگ وداؤٹ آبجیکٹیو گراؤنڈس۔ لاجیکل تھنکنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ کس طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ عام زندگی میں ہم ججمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ایگریمنٹ شو کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ شو کرتے ہیں، کوئی فیصلہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ حامی بن رہے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں جو فیصلہ کرنے والا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ جو بھی فیصلہ لینے جا رہے ہیں وہ حق بجانب ہے، یا ہم اس کے خلاف بھی اپنی اوپینین پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکس کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم عام زندگی میں ایگریمنٹس، ڈس ایگریمنٹس کے حوالے سے ججمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایتھکس موریلٹی کی دنیا ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل اس نے جو کام کیا یار بہترین کام کیا، تو بہترین آپ ایک ویلیو ججمنٹ پاس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے جو فیصلہ لیا تھا یار وہ اخلاقی فیصلہ نہیں تھا، اگین آپ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں۔ آپ پولیٹیکل سینیریو کے اندر ایک پولیٹیشین کے سٹیٹمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے، اس کی تعریف کر سکتے، تو آپ ایکچولی ججمنٹس ہی پاس کرتے رہتے۔ اچھا، ابھی ہوتا کیا ہے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو وٹ وائی اینڈ ہاؤ پہ بیلیف رکھتی ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ ابھی ڈیفینیٹلی انسان کی یہ فطرت، اس کی یہ نفسیات ججمنٹ کے حوالے سے گراؤنڈز ڈیمانڈ کرے گی۔ آپ نے کوئی فیصلہ لیا، آپ نے کسی کے فیصلے کے ساتھ حامی بری، اس کو صحیح مانا، آپ نے اس کو غلط مانا، تو کوئی ہو سکتے جو آپ سے وجہ پوچھے کہ یار آپ کے پاس کیا گراؤنڈز ہے اس
के फैसले को सही कहने के हवाले से। यहाँ पे वो ग्राउंड्स और रीजंस की कहानी शुरू हो जाती है। तो हम आम जिंदगी में अपने जजमेंट्स की जस्टिफिकेशन के हवाले से कभी कभार आदत का तड़का लगाते हैं। जी आदत से मजबूर होकर उसने ये काम किया, इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश करनी चाहिए। कभी कभार हम क्या कर लेते हैं, हम अपने बिलीफ्स की तरफ, वो जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हमारे होते हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि इवन हमारे शुअरा में भी ऐसे अशार आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि पश्तो की एक मशहूर हुए, वो फाल्स का थिंकिंग के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। मा सहर सबाली दले ओ द चामख चे मदरस तवरस के उन ली दास्तामख। ये सुबह सवेरे मैंने किसका मुंह देखा कि जिसके बाद मुझे तुम्हारा दीदार ही नसीब नहीं हुआ। तो एक्चुअली हम अपने आदात को बतौर वजह पेश कर सकते हैं, हम अपने बिलीव्स को भी बतौर वजह पेश कर सकते हैं, हम अपने फीलिंग्स, इमोशन, डिज़ायर्स को भी रेफर कर सकते हैं कि ये दिली ख्वाहिश थी इसलिए ऐसे काम किया गया, या ऐसा मैंने कर दिया, या इस तरह मैंने सोचा। हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी हो सकते हैं जी, हमारे रस्म और रिवाज, ठीक है। और वहीं पे जस्टिफिकेशन के हवाले से ग्राउंड अक्ल पे भी मबनी हो सकती है। अभी लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग इन सारे ग्राउंड्स में से सिर्फ उस ग्राउंड को एक्सेप्ट करेगी जहां पे अक्ल के लिए गुंजाइश मौजूद हो। और जब भी हम अक्ल के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपने इसको बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग में लेना है। हवास और अक्ल दोनों की बुनियाद पे किसी भी जजमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करना वो क्रिटिकल थिंकिंग बन जाता है। तो लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत क्यों है, लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत क्यों है, ताकि हम अपने जजमेंट के हवाले से जो भी फैसला लेने जा रहे हैं हम उन ग्राउंड्स को डिफरेंशिएट कर सके जो कि रैशनल बेस्ड ग्राउंड्स ना हो, जो कि रीजन बेस्ड ग्राउंड ना हो, जहां पे रैशनैलिटी मिसिंग हो। ठीक है, कहानी फिर चली जाती है फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ। कभी कभार हम अपने आदात का बहाना बनाकर कोई काम जस्टिफाई करने की कोशिश करते, कभी कभार हम अपने बिलीव्स की तरफ चले जाते। अगेन बिलीव्स को आपने बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग में लेना होगा। कभी कभार हम अपने रस्म और रिवाज की तरफ जाकर वहां से अपनी किसी भी फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आदत और रस्म और रिवाज, हमारे बिलीव्स, इनको सिर्फ तभी बतौर ग्राउंड एक्सेप्ट करेगी जहां पे आपके हाथ ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स मौजूद हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले। तो लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम उन जस्टिफिकेशंस को डिफरेंशिएट कर सके जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड हो, उन जस्टिफिकेशन से जो कि डॉगमेटिक और सुपरस्टिशियस थिंकिंग पे बेस होते हैं। लॉजिकल थिंकिंग को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है क्रिएटिव हॉबीज़ की हैबिट डेवलप करना। क्रिएटिव हॉबीज़ में मैं समझता हूँ कि आपकी जो इन डेप्थ रीडिंग है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, आप तभी लॉजिकल तरीके से अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई कर पाएंगे जब आपने उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लिटरेचर और सबसे जेन्युइन लिटरेचर को कंप्रिहेंसिवली स्टडी भी किया हो और उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब भी किया हो। ठीक है, सो आपने क्रिएटिव हैबिट्स को अपनाना है। इसी तरह आपकी जो सोशल गैदरिंग है, यू नीड टू बिहेव सोशली। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी, आप ऑन्टोलॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं बतौर फर्द वाहिद नहीं, आप एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी, एक कल्चर का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के हवाले से ये ज़रूरी होगा
कि आप उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को पहले रियलाइज करें, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। वो जो कहते हैं ना, डू इन रूम व्हाट द रोमन्स डू, ठीक है। पहले आपने उस प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद है उसको समझना है, और इन सारी चीज़ों को ऑन करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग के जो एक्चुअल मेथड्स और टेक्निक्स है ना, उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एक कोर्स होता है, यूजुअली ये BS के लेवल पे पढ़ाया जाता है, एडवांस लेवल पे भी होता है, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो मंतक के हवाले से इल्म को हासिल करना ये भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकती है एज फार एज थिंकिंग लॉजिकली इज कंसर्न, ठीक है। जब हम लॉजिक को डिफाइन करते तो हमें ये समझ आ जाती है कि असल में ये एक स्टडी है, एक तरह से एक रेशनल और साइंटिफिक अटेम्प्ट है मेथड्स, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स का, ठीक है। उन मेथड्स, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स का मेन कंसर्न होता है करेक्ट रीजनिंग को इनकरेक्ट रीजनिंग से डिफरेंशिएट करना। दैट इज टू से लॉजिकल थिंकिंग को डॉगमेटिक, सुपरस्टिशियस या फेलेशियस थिंकिंग से डिफरेंशिएट करना। तो ये भी ज़रूरी होता है कि हम उन मेथड्स, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करें। और दूसरी बात, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के हवाले से भी हमने अपने आदात को ऑन करना होगा, ठीक है। सो इल्म को हासिल करना कम्प्रिहेंसिवली, फिर उसी इल्म को अपनी ज़िंदगी में अमली निफास के हवाले से जदोजहद करना, इस तरीके से हमारी लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज़ इम्प्रूव और डेवलप होती रहती है। क्या ये कल्चर और रिलीजन के साथ कंपेटेबल है या इनकम्पेटेबल है? अच्छा, सवाल थोड़ा सा डीप डाउन एनालिसिस रिक्वायर करेगा। अच्छा, अभी ऐसा नहीं है कि कल्चर और रिलीजन में सारी की सारी जो कहानी लिखी गई है वो डॉगमेटिक और सुपरस्टिशियस होती है। डेफिनेटली एक कल्चर जब हमारे सामने आते तो हमारे फोर फादर्स और एंसेस्टर्स ने लाइफ एक्सपीरियंसेस को खुद एक्सपीरियंस करके कंक्लूजन्स को डिराइव किया होता है, मगर उन कंक्लूजन्स को डिराइव करने के दौरान ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया गया हो। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो जो मेन कंट्रीब्यूटर है, जो कल्चर में जो एक एलिमेंट ऐड करने जा रहा है, उसकी उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको ये लगता है कि जी मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो लॉजिकल थिंकिंग ये डिमांड करेगी कि क्या वाकई ऐसा है? कल्चर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी है जिनके हवाले से आप ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके कंक्लूजन की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मगर वहीं पे कल्चर के अंदर ऐसी भी कहानियां लिखी हुई है जो कि बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग के अपोजिट डायरेक्शन पे चली जाती है। एंड सेम वुड बी द केस विद रिलीजन। अच्छा, जब भी हम रिलीजन के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, तो इशू अगर आता भी है ना इनकम्पेटेबिलिटी का, वो थ्रू एंड थ्रू ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस की वजह से आएगा, ठीक है। अभी अगेन एक बात सामने आ जाती है, एक लॉजिकल थिंकिंग, ये अभी जितनी भी हम कहानी सुना रहे हैं ना, ये एक टिपिकल फॉर्मल सेटअप के अंदर है ये कहानी, और ये जब आप पॉजिटिविज्म के पैराडाइम को अपने सामने रखते हैं, मगर ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो समझते हैं कि दिस इज़ नॉट द ओनली टाइप ऑफ लॉजिक। रिलीजन की अपनी लॉजिक होती है, पॉलिटिक्स की अपनी लॉजिक होती है, कल्चर की अपनी लॉजिक होती है। हाँ, ये जो लॉजिकल थिंकिंग है या क्रिटिकल थिंकिंग है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स की बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो फॉर एग्जांपल रिलीजन की तरफ चले जाए, सोर्सेज ऑफ नॉलेज की तरफ बात चली जाती है, हवास, अक्ल, इल्हाम। अभी इल्हाम भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पे क्लेम किया जाता है, और मज़हब की पूरी दुनिया अगर आबाद है तो वहाँ पे इल्हाम
का बहुत ही अहम रोल है। उसको हम प्रोफेटिक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उसको हम मिस्टिक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उसको हम रिलीजियस एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उसको हम इंट्यूशन, जनरली स्पीकिंग हम उसको इंट्यूशन कहते हैं। तो अभी कुछ बातें ऐसी है कि अगर आप टिपिकली फॉर्मल लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके इंट्यूशन को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज इवेलुएट करेंगे तो आपके हाथ सिवाय नफ़ी के कुछ नहीं आएगा। फॉर्मली स्पीकिंग अगर हम फॉर्मल लॉजिक का इस्तेमाल करें तो आप इल्हाम को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट, ये हमारी एक्चुअल डिस्कशन नहीं है। सवाल यही था कि क्या लॉजिकल थिंकिंग कल्चर और रिलीजन के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। जी, देयर आर थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ कल्चर, देयर आर थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ रिलीजन जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग एक साइड पे चली जाती है। अगर आप उसके मेथड्स, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे और आप उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो एक कल्चरल या रिलीजियस प्रॉब्लम होता है उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, सो मोस्ट प्रोबेबली आप लॉजिकल थिंकिंग की बुनियाद पे उनको सुपरस्टिशियस और डॉगमेटिक थिंकिंग कहकर डिनाई करेंगे। बट वहीं पे रिलीजन और कल्चर के अंदर ऐसे भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स का इस्तेमाल करके उनके लिए अपने लॉजिकल कंक्लूजन्स दे सकते हैं, या जो गिवन कंक्लूजन्स होते हैं, जो गिवन आर्गूमेंट्स होते हैं, वो आप अंडरस्टैंड कर लेते कि यार देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड दोज आर्गूमेंट्स। तो जी, कंपैटिबिलिटी भी है, बट एट द सेम टाइम लाइफ इज हाईली कम्प्लेक्स। वो देयर आर थिंकर्स जो के मानते हैं, जैसे कि आपका कार्ल मार्क्स के ये कॉन्ट्रडिक्शंस को ओवरकम करने की कोशिश का नाम है। तो कहीं पे अगर आपको बिल्कुल अपोजिट पोल्स नजर आ रहे हैं, डीप डाउन उनके अंदर यूनिटी भी मौजूद होती है। तो लॉजिकल थिंकिंग की एक ब्यूटी ये भी है कि वो अपरेंट जो डिफरेंसेस है, सुपरफ्लुअस डिफरेंसेस उनके अंदर डीप डाउन पेनिट्रेट करके वो जो एक्चुअल हार्मनी है उसको भी एक तरह से अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करेगी।